1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 9 चैप्टर 14 वर्स से 32 वर्स तक, नंबर 7 चैप्टर 8 चैप्टर। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 14 वचन से 32 वचन तक और गिनती की पुस्तक 7 अध्याय 8 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, वचन को हम समझ पाए, क्योंकि ये वचन का सामना करना ही हमें परमेश्वर के लिए जो चाहिए वो हम हो सकेंगे। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हम ढल सकेंगे। हमारी मदद करो। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। मार्क 9 चैप्टर 14 वर्स से 32 वर्स तक हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them. And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him saluted him. And he asked the scribes and questioned ye with them. And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit, and wheresoever he taketh him, he teareth him, and he foameth and gnasheth with his teeth, and pinneth away. And I spake to thy disciples that they should cast him out, and they could not. He answereth him and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. And they brought him unto him, and when he saw him, straightway the spirit tear him, and he fell on the ground and wallowed, foaming. And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child, and oft times it hath cast him into the fire and into the waters to destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou mine unbelief. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him. And the spirit cried and rent him sore, and came out of him, and he was as one dead, insomuch that many said, He is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he was come into the house, his disciples asked him privately, Why could not we cast him out? And he said unto them, This kind can come forth by nothing but prayer and fasting. And they departed thence and passed through Galilee, and he would not that any man should know it. For he taught his disciples and said unto them, The Son of Man is delivered into the hands of men, and they shall kill him, and after that he is killed, he shall rise the third day. But they understood not that saying, and were afraid to ask him. मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 14 से 32 वचन तक। 9 अध्याय 14 से 32 वचन तक। दुष्ट आत्माग्रस्त बालक को चंगा करना। 14 वचन से आगे पढ़ेंगे। 9 अध्याय 14 वचन से 32 वचन तक। जब वह चेलों के पास आया
तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वही पटक देती है और वह मुंह से फेन भर लेता है और दांत पीसता और सुखाता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि यह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। फिर अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यवाणी। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। थैंक यू पवित्र आत्मा, ये वचन हमको देने के लिए। पिता परमेश्वर, हम विनती करते पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।